So next topic is principles of homeostasis. What is homeostasis? Maintenance of internal environment of the cell. So अटेंडेंस शीट मैंने आपको दे दी है, उधर आपको फर्स्ट कॉलम में नेम लिखना है और सेकंड कॉलम जहाँ पे डेट लिखा हुआ है उधर सिग्नेचर करना है. क्लियर? कंफर्म कर लेना अपनी अटेंडेंस. So general concepts: maintenance of constancy of internal environment of the body. So in the 19th century, Claude Bernard, a French physiologist, was first to introduce the concept of milieu intérieur, which means the internal environment of the body. ठीक है, इसमें constancy को include नहीं किया गया था. Internal environment of the body. So what do you mean by internal environment? So observation made by Claude Bernard: volume and composition of the fluid are maintained constant independent of the changes in environment in which the animal lives. He observed that the fluid in the body is the internal environment, fluid of the body as the internal environment. Clear? To differentiate it from the external environment of the body. And he suggested that the ability to regulate internal environment is the major reason for humans and animals to live a normal life despite changes and challenges imposed on them by the external environment. और उसके बाद differences between the ICF and ECF and propose ECF as the internal environment of the body. Then in 1929 American physiologist Walter Cannon, जिन्होंने क्या किया, milieu इंटीरियर को क्या टर्म किया, homeostasis. So to describe the phenomena of constancy of the internal environment. So objectives of homeostasis is to maintain body parameters within the normal range. There are some body parameters that require strict regulations within their normal limits, and such parameters are body temperature, pH of body fluid, potassium concentration. ठीक है, so ये सभी किसमें इंक्लूड हो जाएंगे, in the internal environment of the body. अगर इनसे डेविएशन होगा, it may become harmful to the body. So homeostatic mechanism, it is the stability of the internal environment of the body, and it is not only the equilibrium of the internal environment but also the balance of composition, components of the environment and the physiological variables that influence the environment. Clear? और अगर इससे डेविएशन होगा, abnormal, increase or decrease, ठीक है, from these homeostatic processes it leads to bodily dysfunctions. ठीक है, so homeostasis clearly, अगर आपके ये टॉपिक आता है, क्वेश्चन शॉर्ट नोट आता है homeostasis पे, so आपको क्या लिखना है, what is homeostasis, definition और internal environment में क्या क्या included है. And this homeostasis is achieved by feedback mechanism. There are two type of feedback mechanism, negative and positive. Negative में क्या होता है, मीन्स अगर किसी वेरिएबल की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, ठीक है, तो वो जहां से आ रहा है, ठीक है, या जिसकी वजह से उसका सीक्रेशन इंक्रीज हो रहा है, उस वेरिएबल की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, वो जाके वो सारे अपर लेवल्स को इनहिबिट कर देगा. ठीक है, नेगेटिव फीडबैक. पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, जैसे कि आप ये देखे हो मिल्क इंजेक्शन, है ना, तो उसमें क्या होगा, वेरिएबल की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है और वो आगे जिसको स्टिमुलेट कर रहा है वो उसकी कंसंट्रेशन को और इंक्रीज करेगा. क्लियर? सो नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा, द वेरिएबल विल इनहिबिट जहां से वो सीक्रेट हो रहा है ना. और पॉजिटिव में क्या होगा, एक विशियस साइकिल चलती रहेगी, जैसे कि हॉस्किंग साइकिल आपने पढ़ा होगा कि जब अपन नर्व या मसल फाइबर को स्टिमुलेट करते हैं तो एक पॉइंट पे जब अपन स्टिमुलेट करेंगे तो वहां पर क्या होगा कि जो मेम्ब्रेन की पॉलरिटी है वो चेंज हो जाएगी. ठीक है, ड्यू टू ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल. अब वो जो सोडियम चैनल है वो और सोडियम चैनल्स को ओपन करेंगे. क्लियर? और इस तरीके से एक साइकिल चलती रहेगी, एक सोडियम 2 को 2 से 4, 2 to 4, 4 to 16, इस तरह से एक साइकिल चलती रहती है जब तक कि सारे सोडियम चैनल्स इन द सेल मेम्ब्रेन्स आर ओपनड अप. क्लियर? सो ये एग्जांपल किसका है, पॉजिटिव फीडबैक. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फीडबैक रेगुलेशन, नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक. So these are the parameters, उनकी normal range, like प्लाज्मा की जो pH है it is 7.35 to 7.4 और short term non lethal limit, short term non lethal. ठीक है, कुछ टाइम के लिए अगर ये इस लिमिट में रहते हैं तो it is okay, अगर लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं तो it is harmful to the body. Clear? Non lethal limit for short term
6.928. Then plasma potassium, it is 3.525 and non-lethal limit is 1.529. समझ में आ रहा है ना? शॉर्ट टर्म के लिए अगर चेंज हो रहा है तो ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए होगा तो डेविएशन को बॉडी इतना टॉलरेट नहीं करेगी. बॉडी टेम्परेचर 97 to 98.8 and limit non-lethal limit for short term is 65 to 110. Then carbon dioxide, it is 35 to 45 millimeter of mercury and then 5 to 80. Plasma sodium 135 to 146 and non-lethal limit is 115 to 175. Bicarbonate 24 to 32 and limit जो कुछ टाइम के लिए टॉलरेट करेगी 8 to 45. Blood glucose, it is 60 to 99 and changes 25 to 1500 for short term is tolerated. So negative feedback. So negative feedback mechanism, it is the usual mechanism of homeostatic regulation. So in negative feedback system, when the variable is raised above the set point, the negative feedback mechanism triggers processes that inhibit the formation of variable. Clear? किसी भी कंसंट्रेशन किसी भी वेरिएबल की इंक्रीज होगी तो सेट पॉइंट को इनहिबिट कर देंगी जिससे कि उसकी कंसंट्रेशन वापस से डिक्रीज हो जाएगी. सो व्हेन द वेरिएबल इज लोअर बिलो द सेट पॉइंट, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम विथड्रॉज द इनहिबिशन टू अलाउ द प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल. क्लियर? एग्जाम्पल्स लाइक कोई भी स्टिमुलस या स्ट्रेस कॉजेज डिस्टर्बेंस. ठीक है, सो चेंज इन वेरिएबल, एक्टिवेशन ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म. सो अफेक्ट्स और रिस्पॉन्सेज जो क्या करेंगे, इनहिबिट और स्टिमुलेशन ऑफ वेरिएबल. सो या तो क्या होगा, रिटर्न टू होमियोस्टेसिस. अगर किसी वेरिएबल की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई है तो वो डिक्रीज हो जाएगी और डिक्रीज हुआ है तो इंक्रीज या नॉर्मल आ जाएगा. ठीक है, और अगर फेलियर होता है सो फेलियर ऑफ फीडबैक रेगुलेशन कॉजिंग डिसफंक्शन. कंपोनेंट्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? जैसे कि आपके रिफ्लेक्स में होता है ना, रिफ्लेक्स पढ़ा है ना आपने, रिफ्लेक्स के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिसेप्टर होता है जो एक सेंसर की तरह एक्ट करता है. उसके बाद एक न्यूरॉन आती है जो विच कैरीज द सेंसेशंस टू द कंट्रोल सेंटर विच इज सीएनएस, राइट? उसी तरीके से फीडबैक का भी एक वो होता है, लाइक आपके कोई पिन प्रिक किया, ठीक है, तो क्या फीडबैक आएगा उसका कि सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रेन की जाएगी और वहां पर विड्रॉल होगा, है ना, कि आपने उस नॉक्सियस स्टिमुलस से जो कि नेगेटिव डैमेज कर रहा था उससे अपने आप को दूर कर लिया. सो इट रिक्वायर्स अ सेंसर दैट डिटेक्ट्स द चेंज इन वेरिएबल, ए कंट्रोल सेंटर लाइक इन रिफ्लेक्स इट इज सीएनएस और स्पाइनल कॉर्ड दैट रिसीव इनपुट फ्रॉम द सेंसर एंड इनिशिएट्स कमांड सिग्नल एंड एन इफेक्टर. ठीक है, और जैसे कि रिफ्लेक्स में होता है पेरिफेरी, जो भी पेरिफेरल ऑर्गन है मेनली मसल्स होती हैं. सो इफ्रेंट न्यूरॉन मोटर इन्फॉर्मेशन को लेके आती है और सप्लाई करती है टू द पेरिफेरल ऑर्गन और जो भी कंसर्न ऑर्गन होता है. सो सेंसर, कंट्रोल सेंटर एंड अफेक्टर. सो कंपोनेंट्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन सिस्टम लाइक डिस्ट्रप्शन ऑफ होमियोस्टेसिस, होमियोस्टेसिस डिस्टर्ब हो गया है, सो इट इज डिटेक्टेड बाय द सेंसर और रिसेप्टर, देन इट रीचेस टू द कंट्रोल सेंटर. From there, output signals are generated that reaches by the affector to the affective organ and return to homeostasis. ठीक है, जो मीडिएट कर रहा है रिस्पॉन्स को, अगर नॉर्मल हो जाता है उससे पहले तो वो डायरेक्टली कंट्रोल सेंटर को इनहिबिट कर सकता है और इट में इनहिबिट द सेंसर और रिसेप्टर. नेक्स्ट वन इज पॉजिटिव फीडबैक. सो इफ देयर इज इंक्रीज इन द वेरिएबल, ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होता है इसमें क्या होगा, इट ट्रिगर्स द प्रोसेसेस दैट फर्दर इंक्रीज द वेरिएबल. ठीक है, लाइक अगर कैल्शियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई तो पॉजिटिव में क्या होगा, वापस से ऐसे स्टिमुलस को वो प्रमोट करेगा या ऐसी ग्लैंड को वो स्टिमुलेट करेगा कि वापस जो कैल्शियम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगी. So this sets the vicious cycle of activation of the process. Therefore, this control mechanism does not operate to provide homeostasis. So this system is known as vicious cycle system that terminates only when the stimulus applied to trigger is withdrawn or the process itself is self-terminated. ठीक है, कि जिस चीज से वो वेरिएबल की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, जिस स्टिमुलस से, या तो उस स्टिमुलस को ही हटा लें अपन या फिर
वो जिस प्रोसेस के लिए, लाइक मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स है, एक बार मिक्सचुरेशन हो गया तो अपने आप वो कंट्रोल हो जाएगा, है ना। ऐसे ही तो जिस चीज के लिए वो हो रही है, जिस भी मैकेनिज्म के लिए, वो मैकेनिज्म एक बार कंप्लीट हो जाएगी और ऑटोमेटिकली वो सेल्फ टर्मिनेट हो जाएगी वो साइकिल। Examples of positive feedback regulations are parturition reflex that is initiated by the oxytocin. So when the head of mature fetus presses on the uterine cervix, the cervical distension sends signal to release oxytocin, which increase the excitability of myometrium and causes uterine contraction. So oxytocin का जो secretion है वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि delivery of fetus नहीं हो जाता, उसके बाद automatically वो टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर? लाइक एलएच सर्ज, हॉजकिंस साइकिल, मैंने अभी आपको बताया कि व्हेन वी आर स्टिमुलेटिंग अ नर्व और मसल मेम्ब्रेन, सो वन पॉइंट पे व्हेन वी आर गिविंग स्टिमुलस देयर अकर्स ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल, सो वन सोडियम चैनल कॉजेज ओपनिंग ऑफ मोर सोडियम चैनल एंड इस तरीके से साइकिल चलती रहेगी until the whole membrane is polarized. ठीक है, ये हॉजकिंस साइकिल है। थ्रेशोल्ड डिपोलराइजेशन, ओपनिंग ऑफ ए सेट ऑफ सोडियम चैनल, फर्दर ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल, रैपिड राइज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, देन देयर अकर्स डिपोलराइजेशन। वंस देयर इज डिपोलराइजेशन, ये जो साइकिल है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। एक्टिवेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स and enzymes which causes hypothesis of coagulation. ठीक है, so important examples of homeostatic regulation like body temperature regulation. अगर temperature, if the body temperature is maintained within a narrow range of 96 to 98.4, when temperature is more than normal, the body activates the controlling mechanism to increase heat loss through cutaneous vasodilation and sweating. When hypothermia, when decrease हो जाएगा temperature, the body responds by decreasing heat loss through vasoconstriction and by increasing heat production through shivering. Regulation of blood pressure, regulation of hormone secretion. ठीक है, and next one is contribution of sympathovagal balance. Sympathovagal balance means the balance between sympathetic and parasympathetic. Vagus nerve is parasympathetic and sympathetic. So system of feedback regulation primarily based on neural inputs and mechanisms. ठीक है, तो जो भी फीडबैक हमको अचीव हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? इस सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के दोनों सिस्टम्स के बैलेंस की वजह से, विच इज कॉल्ड एज न्यूरल रेगुलेशन, राइट। जैसे कि हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सीक्रेशन हो रहा है, तो कहीं पर तो सिंपैथेटिक पॉजिटिव अफेक्ट लेके आता है और कहीं पर पैरासिम्पैथेटिक, है ना। लाइक अगर अपन जीआईटी की गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम की बात करें तो सिंपैथेटिक का एक क्या इफेक्ट होता है वहां पे? Secretions of juices and motility is increased by the parasympathetic और sympathetic stimulation of vagus nerve, right? और अगर अपन हार्ट की बात करें तो sympathetic causes increase, positive effect is achieved by the sympathetic stimulation, और जो parasympathetic है वो क्या करता है? उसको decrease करता है, like decrease heart rate, decrease force of contraction. So neural regulation has the advantage of immediate and effective control of parameters. So therefore autonomic regulation of visceral functions, all visceral functions dominates all other regulatory mechanism. ठीक है, so main control center किसके पास है? mainly ANS. So sympathetic and vagal stimulation to the organs have opposite influences, है ना। जैसे मैंने बताया कि sympathetic अगर positive effect कर रहा है तो parasympathetic क्या करेगा? negative. A balance between them which is known as sympathovagal balance is essential for smooth conduction of cardiorespiratory, endocrinal and other visceral and metabolic functions. ठीक है, so chronic autonomic dysregulation that leads to dyshomeostasis and dysfunction has been reported to be the major contributor to degeneration, decay and premature death. Clear? तो अगर दोनों में बैलेंस है तो जो फंक्शन है, होम्योस्टेसिस है, वो नॉर्मली जो बॉडी है वो नॉर्मल काम करेगी, और अगर इन दोनों के बीच में इम्बैलेंस रहता है तो उसकी वजह से डिसहोमियोस्टेसिस क्रिएट और डिसफंक्शन क्रिएट होगा। किडनीज भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं होम्योस्टेसिस में, आपको पता ही है ना।
So kidney is important organ for the homeostasis of many physiological variable like blood volume, regulation of blood volume, कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो किडनीज क्या करेंगी, मोर यूरिनेशन. एंड ब्लड प्रेशर, पीएच, मेनली जो HIN का एक्सक्रीशन है वो किसके थ्रू हो रहा है, किडनीज के थ्रू. सो एसिड बेस बैलेंस में भी मेन रोल होता है किडनी का. इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड ऑस्मोलरिटी ऑफ फ्लूइड कंपार्टमेंट्स. Adaptive control system like homeostatic control system work usually in interlinked and integrated fashion for instantaneous withdrawal of body part from a noxious stimulus. The spinal neural circuit for the withdrawal reflex is activated promptly for the purpose. So primary objective क्या है homeostasis का, to maintain cellular function that in turn promote tissue or organ functions. Clear? So this is all about today's lecture. क्योंकि बेसिक लेक्चर है तो सब कुछ आपको बहुत ही शॉर्ट में मैंने बता दिया है. सेल मेम्ब्रेन से आपका कुछ भी इंपॉर्टेंट आता नहीं है, बट होम्योस्टेसिस इज इंपॉर्टेंट. शॉर्ट नोट आता है होम्योस्टेसिस पे. दो टर्म है वहां पर, एक होम्योस्टेसिस है, अनदर वन इज हीमोस्टेसिस. अभी आपको सब कुछ क्लियर लगेगा, लेकिन जब आपसे वाइवा में पूछा जाता है ना, व्हाट इज होम्योस्टेसिस, व्हाट इज हीमोस्टेसिस, कोई भी बहुत ही रेयर केस में कोई आंसर करता है. हीमोस्टेसिस क्या है, हीमोस्टेसिस ब्लड से रिलेटेड, इट इज रिलेटेड टू ब्लड. ठीक है, जो भी नेम है वो ऑटोमेटिकली सजेस्ट करता है कि उसका आंसर क्या देना चाहिए आपको, होम्योस्टेसिस, राइट, एंड हीमोस्टेसिस. सो इट इज समथिंग रिलेटेड टू स्टेसिस ऑफ ब्लड, राइट. लेकिन वहां पर कोई भी आंसर नहीं करेगा. जब आपसे आंसर पूछा जाएगा तो यही बोलोगे, हीमोस्टेसिस इज कॉन्स्टेंसी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी. आपके सीनियर से पूछ लेना वो क्या आंसर करते हैं. ठीक है, तो ये दोनों टर्म को अभी से अपने माइंड में सेट कर लो. होम्योस्टेसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट एंड हीमोस्टेसिस क्या है, स्पॉन्टेनियस अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग बाय द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, है ना. ब्लीडिंग का रुकना इज हीमोस्टेसिस, हीमस्टेसिस. कोई क्वेश्चन किसी का? अटेंडेंस साइन हो गई?